विनय जी, विनय जी। बोलिए बोलिए। हाँ, साउंड नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, साउंड नहीं आ रहा मेरे में। वो कर रहा है, वही हाँ आपको देखिए फोन, मुझे तो है। वही आपको फोन मिला रहे थे कितना? तो। हाँ ठीक है ठीक है। देखिए 1 मिनट। आप कोशिश कर रहे हैं। आपका आवाज नहीं आ रहा है। आ गया आ गया। मेरा आवाज आ रहा है? आ गया ना? हाँ, आ हाँ गया आ ठीक गया, है। अभी आ गया। हाँ, वही आपको फोन कर रहे थे। हाँ। ठीक। ओके। ठीक है ओके। मौसमी मैडम। मौसमी मैडम। मौसमी मैडम क्या हट गए क्या? मौसमी मैडम हट गए क्या? देखिए तो। मौसम। नहीं, मौसी मैडम तो दिख नहीं रही है। हाँ वही बोल मौसम रहे मैडम थे, क्या मौसमी मैडम हट गए घर क्या? से हैं, कॉलेज से हैं? मौसम मैडम कहाँ से हैं विनय जी? मौसमी मैडम कॉलेज में कॉलेज है। से, कॉलेज से कॉलेज में हाँ। है। हाँ। अच्छा अच्छा। उनको फिर से ऐड होने के लिए बोलिए मौसमी मैम को। हाँ हाँ थोड़ा सा फोन कर हाँ, देते हैं उनको। मौसमी मैम को फिर से। विनय सर। ये ऐड होने के लिए बोलिए फिर से। हाँ, फिर से ऐड होने के लिए बोलिए। हाँ बोलिए। क्या फोन करें? आप कर रहे नहीं हैं? नहीं यहीं पर हैं, बगल में बात कर रही हाँ, तो विशाल को बोल दीजिए। हाँ। प्रेजेंटिंग मत कोई दबाओ, प्रेजेंटिंग मत कोई दबाओ। मोबाइल में ये सब करना नहीं है। तो वीडियो ऑडियो ऑन ऑफ करना है। जो मैसेज देना मैसेज देना, बाकी कोई काम नहीं करो। प्रेजेंटिंग बंद कर दो बाबू। कौन किया है? प्रेजेंटिंग इस सब पे कोई पर क्लिक मत करो। हम्म, ये तो मौसी मैम दिख रही है। हाँ, आ गई मौसी मैम। आ गई? हाँ, आ गई, दिख रही है। चलिए हाँ चलिए मैडम। मौसम म्यूट हो मैडम। गया है, मौसी मैडम म्यूट हो गया है। ठीक है, अनम्यूट हो अच्छा। गया। हाँ I'm ठीक। audible हाँ to you हाँ। all. Okay, so there were some technical issues. I told you before starting my deliberation. So I was reading a poem. जो था कि the whales are swimming, the deer galloping, wondering where the humans are who try to destroy us all. But I do believe our faith in God, who is mightiest of all, will help us conquer this fear once and for all. I hope a wonderful better tomorrow is near for us all. तो इस पॉजिटिव नोट के साथ हम लोगों को ये शक्ति मिलती है कि हमें इस पैंडेमिक का सामना कैसे करना है, क्योंकि हम लोग तो जूझते आ ही रहे हैं. दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम वी आर स्ट्रगलिंग विद दिस पैंडेमिक. एन अननोन एनिमी, एक अज्ञात शत्रु जिसके आने से सब कुछ बदल के रख दिया है. So now the introduction. I would also try to show you some slices, some slides showing the pictures while giving my lecture. So that will be better for all of you to understand. I will try for that. So these days, home is the new office. The internet is the new meeting room. As we are here, we can see, we are realizing that this pandemic has significantly changed the contours of professional life. COVID-19 does not see race, religion, color, caste, creed, language or border before striking. किसी को बोल के किसी को देख के ये स्ट्राइक नहीं करता है, and it is traveling globally and attacking the people irrespective of caste, color, and religion.
So now we will see what are the symptoms of the illness that we know. But then also I think that I should repeat these things because these things should always be there in our mind. So now that include fever, cough, shortness of breath, जैसे सांस लेने में तकलीफ होती है, बुखार आना, trouble breathing, fatigue, कभी कभी chills with shaking, body aches, headache, sore throat. So I would try to give you the views of some pictures, images, and the slides that will help you to understand what I mean to say. Okay. So I am in or not? Okay. So I will go to the pictures that will helpful for you to understand what does I mean by these aches. Now you can see here the slide that I am presenting before you. It is not showing. You can see the pictures. These are the symptoms. This is a victim of COVID-19. इसमें आप देख रहे हैं इस तरह का सूजन हो चुका है. Toes का picture है जो red है. You can see the red patches. So this symptoms is not common symptom, but then also it is an picture of a COVID-19 patient. You can see another picture that the patches, the red patches have developed near the stomach area. तो इससे आपको कुछ क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है किस तरह का जो पेशेंट है किस तरह के सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं. तो इसमें हम लोग हेडेक और बॉडी एक्स भी देखेंगे. लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट, जो पेशेंट होंगे उनको किसी तरह का स्वाद या फिर स्मेल, सुगंध में या गंध पाने में दिक्कत होगी. डायरिया इज वेरी कॉमन अमंग देम. और जो निमोनिया वाली बात है, निमोनिया तो होगी ही, और उसके साथ जो इसमें हम लोगों को और कुछ नई चीजें पता चली है इन दिस COVID-19 victims, that is ongoing chest pain, pressure, new confusion, can't wake up fully. The patients can't wake up fully. वो पूरी तरीके से उनको उठने में तकलीफ है. उनके जो लिप्स और फेस है उसमें हम ब्लूइश कलर देखेंगे, नीली पड़ जाएंगी उनके चेहरे और लिप्स. So these are the symptoms. So I am telling this, repeating this symptoms so that whenever you see such symptoms within people around you, within your loved one, so don't delay and go quickly for the medical help. That's why I have tried to get some images of this सिम्टम्स. इसके साथ हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तब हम लोग एक चीज और देखेंगे कि ये जो सिंड्रोम है, मेनी COVID-19 कॉम्प्लिकेशंस मे बी कॉज्ड बाय अ कंडीशन नोन एज साइटोकिन रिलीज. एक साइटोकिन रिलीज जो हमारे बॉडी में पाई जाती है उसका सिंड्रोम है. जो दिस इज व्हेन एन इन्फेक्शन ट्रिगर्स योर इम्यून सिस्टम. हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यून सिस्टम है, इसमें जब ये ट्रिगर हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है, it lead to flood the bloodstream with inflammatory proteins called cytokines, and that they can kill tissue and damage your organs. You can see through the slide views, these pictures, a virus of COVID-19 looks like this under the microscope. Although microbiologists around the world have been using the virus to try and develop a vaccine, many of us non-scientists haven't actually seen what this new coronavirus looks like. So for people, I have arranged some images of this coronavirus. जिसमें इस तरह के आप देख सकते हैं spikes developed. You can see these are the views of the virus, coronavirus disease. Now,
अगर हमको बोला जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिटी स्प्रेड, दिस इज अ टर्म दैट वी शुड नो कि हमारे जो एक कैरियर है वायरस का, किस तरह से आप ये वायरस इन्फेक्ट कर देता है. सो डॉक्टर्स एंड हेल्थ ऑफिशियल्स use this term when they don't know the source of infection with COVID-19. It is usually refers to someone who gets the virus even though they haven't been out of the country or haven't been exposed to someone who's traveled abroad or who has COVID-19. मतलब ये है कि किसी को ये इन्फेक्शन किसी के द्वारा लग सकता है, लेकिन जब ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन अननोन हो, हमें पता ही नहीं चले कि वो कभी देश के बाहर गया नहीं, ना किसी ऐसे इन्फेक्टेड पेशेंट के कभी वो संपर्क में रहा, तो फिर उसे कैसे ये इन्फेक्शन लगा. तो इस केस में हम इसे कहते हैं कि इसे कम्युनिटी स्प्रेड कहा जाता है, कि कम्युनिटी के थ्रू इस आदमी को ये इन्फेक्शन हुआ है. अच्छा, अब आप लोग जैसे कोविड-19 के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं कि कोविड-19 जो है उसमें ये सिम्टम्स है, उसके साथ ये क्वारंटाइनिंग इशू है, उसके साथ आइसोलेशन है, हाइजीन है, एवरीथिंग, द मेडिकेशन एंड ऑल. सो बट डू यू नो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कोरोना वायरस एंड कोविड-19? उन दोनों के बीच का क्या बेसिक डिफरेंस, डू यू हैव एन आइडिया? Listen, coronavirus is the name of the virus. उस कोरोना वायरस पॉजिटिव मतलब उस वायरस का शरीर में मौजूद रहना, इसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी जो है वो इन्फेक्टेड है या कोविड-19 का पेशेंट है. बिकॉज अगर उसे कोरोना वायरस पॉजिटिव है लेकिन बाकी सारे सिम्टम्स में फीवर है और कुछ हल्के फुल्के सिम्टम्स है, तो थ्रू मेडिकेशन और थ्रू प्रॉपर केयर उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करना है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है. उसके बुखार के लिए उसे आप बुखार की कोई भी दवा, पैरासिटामोल हो, क्रोसिन हो, दे सकते हैं. और इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए उसे बिकोसूल और इस तरह के टॉनिक दिया जाता है ताकि उसके अंदर एंटीबॉडीज रेडी हो और एंटीबॉडीज के बाद वो उस वायरस से लड़ने में सक्षम हो सकता है. इससे क्या होता है कि वो मतलब इन 10-12 days he can be recovered completely. This has seen. लेकिन अगर किसी में सारे सिम्टम्स के साथ फीवर है या फिर बॉडी एक्स है या फिर उसे डायरिया है, निमोनिया है और उसके साथ वो कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया जाता है, in that case he is surely a patient of COVID-19 और जिसका थेरेपी और जिसका रेमेडी ऑफ मेडिकेशन हम लोग जानते हैं कि टोटल क्वारंटाइनिंग एंड सेल्फ आइसोलेशन. लेकिन ये आइसोलेशन और ये डिटैचमेंट इस हम लोग का जो है वो ज्योग्राफिकली होना चाहिए. फिजिकल डिटैचमेंट, हम उनसे दूर रहेंगे, उस पेशेंट से डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, लेकिन इमोशनली उससे कनेक्ट रहेंगे, इमोशनली उससे डिटैच नहीं होंगे. सो दैट इज द वन थिंग आई वांट टू कन्वे कि इमोशनली, क्योंकि वो हम लोगों के बीच का ही एक है, तो इससे हम लोग उसे उस समय उसे जो इमोशन की जरूरत होती है, जो हम लोगों को अपनापन की जरूरत है, उससे हम उसे डिटैच नहीं कर सकते हैं ना. अब एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हम लोग इससे पहले प्रिंसिपल सर से सुन भी चुके हैं, दैट इज द आउटब्रेक ऑफ द न्यू कोरोना वायरस इन्फेक्शन कोविड-19. इसका इनिशिएशन, शुरुआत जो हम लोग एप्रीहेंड कर रहे हैं कि कहाँ से हुआ, तो उस जगह का जो हुनान सी फूड मार्केट है, Wuhan city of China, उसका pictures I have gathered you just for showing you the slides, that within a couple of months it has turned out to be a global health emergency. Live animals जैसे bat है, frog है, snake है, bird है, rabbits are frequently sold at the Hunan seafood market. You can see the pictures. Through the pictures it is self-explanatory that how these things are there sold and bought by the people of China, Korea और जो भी आसपास के देश है. इंडोनेशिया में तो स्नेक्स उन लोगों को बहुत ही फेवरेट डिश माना जाता है. So that's why I have gathered. You can see coronavirus. It is written also. Okay, so this is the mask, this is the measure, and this is the problem. So now, whatever be the cause or origin, the occurrence of COVID-19 has emphasized
to improve the mutually affecting connection between humans and nature. हम इससे एक चीज तो हमें इससे पता चला कि हमें नेचर को एक्सप्लॉइट करने से we will also get exploited. We have to create a harmony, a balance with nature. प्रकृति के साथ मेलजोल करके बैलेंस बना के समन्वय करके रहने से ही हमारा डेवलपमेंट हो सकता है. So at this point of time, it is indispensable to control the source of disease. Cut off the transmission path, use the existing drugs and means to control the progress of the disease proactively. अब हमारे पास एक ही चीज है कि हम सबको यूनाइटेड होना है, एक साथ होके इस पैंडेमिक से लड़ना है, क्योंकि इट इज अ ग्लोबल पैंडेमिक. Let we all be optimistic enough that human beings will definitely win over the pandemic in due course of time. But they should know the limits to which they can trust nature before it is too late. हम सब इससे उबर जाएंगे. ये परमानेंट यहाँ नहीं रहने वाला है, लेकिन हमें सीखना होगा नेचर के साथ समन्वय करने का. और एक चीज जो मैंने that thing, the message that I want to discuss here is that what is the impact of this COVID-19 on the society. COVID-19 का impact तो हम लोग देख ही रहे हैं. You can see the pictures. Due to lockdown, all domestic flights, railway services, except the goods train, bus, truck, vehicles, transports are suspended with special exemption to those associated with essential commodities. जैसे ये आप एक पिक्चर देख रहे हैं एयरपोर्ट का, सिडनी एयरपोर्ट का. People, passengers are waiting. You can see it was so lonely, no traffic, no pollution. So in almost all the COVID-19 stricken countries, entire educational, commercial, sports, spiritual institutions are closed. ये तो हम लोग जान ही रहे हैं कि सारे इंस्टीट्यूशंस क्लोज्ड हैं, वो कमर्शियल हो, स्पोर्ट्स हो या अध्यात्म का हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो. So industries are suffering a lot. You can see this is a tourist spot. You can see it was so clear without any traffic. So people belonging to the tourism and transportation industry are also facing utmost difficulties. Production level has gone very low. Economy of many so-called powerful countries are now facing the threat of high inflation and increasing unemployment as a result of lack of productivity. अब मैं आप लोगों के सामने एक ग्राफ का मैंने डायग्राम रखा है. You can see by zooming it, you can see the picture that this is the coronavirus and how it is affecting the world globally and what was the global environment change. You can see. और मैंने अभी जो आप लोगों को इन्फ्लेशन की बात की, इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट की बात किया, लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी, एक्सेसिव एक्सपेंडिचर फॉर द ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज. अभी मैंने कहा कि ड्यू टू लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन तो बिल्कुल डिक्रीज हो गया है बिकॉज फैक्ट्रीज आर क्लोज्ड. एंड इकोनॉमी का जो इन्फ्लेशन है, यू कैन सी द इकोनॉमिक डिक्रीज, द ग्राफ यू कैन सी ओवर देयर. उसके बाद मैं जूम करके आपको ग्लोबल हेल्थ का कंडीशन दिखा रही हूँ. आप यू कैन सी वेरी वेल हाउ द ग्राफ हैज गॉन डाउन, हाउ इट हैज बीन डिसेंडेड. मतलब बिकॉज क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है इन क्वारंटाइन पेशेंट्स को देखभाल करने के लिए, कोविड इफेक्टेड पेशेंट्स को देखभाल करने के लिए. So you can see the graph and that has been presented before you. Now, this is very clear. Now, what is the impact of this COVID-19 on our environment? हमारे पर्यावरण पर इसका क्या असर हो रहा है? अभी हम लोग हमेशा बोलते हैं कि these are the demeasures, these are the side effects, these are the inflation, these are the low production, factories are closed. Very right. This is the exact situation in front of us. लेकिन अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें कि इसका पर्यावरण पर क्या असर हुआ है, तो हम लोग उससे थोड़ा सा संतुष्ट होंगे, खुश होंगे, क्योंकि जिस पर्यावरण का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, शोषण हो रहा था, उसका अभी रूप बिल्कुल बदल गया है. किस तरह से? वी कैन सी दैट एफर्ट्स टू restrict transmission of SARS-CoV-2 by restricting the movement have had an outstanding environmental effect. ये जो लॉकडाउन होने के कारण फैक्ट्रीज बंद हो गई, फैक्ट्रीज से जो वेस्ट
थ्रू चिमनी निकलता था और हमारे एयर को पोल्यूट करता था। जो गार्बेज डंप होता था नदी नालों में, उससे जो पानी का वाटर का पोल्यूशन होता था, साउंड पोल्यूशन होता था ड्यू टू ट्रैफिक, हम देख सकते हैं कितना शांत हो चुका है इन सब के बंद होने से। सो ड्यू टू नॉन फंक्शनिंग ऑफ द इंडस्ट्रीज, industrial waste emission has decreased to a large extent. Vehicles are less found on the road. I have shown you the picture. You can see the vacant road. You can see the picture. कोई भी vehicle नहीं है, इसमें कोई भी traffic नहीं है. So the vehicles are less found, resulting zero emission of greenhouse gases and toxic tiny suspended particles to the environment. ये जो टॉक्सिक गैसेस जिससे चाइनीज सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो एमिट होता था, जो कि एनवायरनमेंट पे मिक्स होता था, वो भी खत्म हो चुका है. सो द पोल्यूशन लेवल इन द टूरिस्ट स्पॉट्स, यू कैन सी द टूरिस्ट स्पॉट आई हैव शोन यू अर्लियर. यू कैन सी दिस पिक्चर्स ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ द टूरिस्ट स्पॉट्स. इट इज सो क्लियर एंड सो नीट. यू कैन सी द सी बीचेस, हिल एरियाज is also due to this lockdown, the pollution is shrinking largely. मतलब प्रदूषण किस तरह से श्रिंक हो रहा है, कम हो रहा है. और ये जो पैंडेमिक है, एक तरह से हमें पूरी तरीके से इट हैज एग्जीक्यूटेड वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रक्शन. ये तो हम जान रहे हैं कि पूरी दुनिया को उसने अस्त व्यस्त करके रख दिया है. सो दैट इज वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रक्शन. बट हम इसके साथ हमें ये मानना पड़ेगा कि इट हैज क्रिएटेड अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट. पर्यावरण पर इसका कितना पॉजिटिव असर हुआ है. सो द वायरस विल डिसअपियर but its effect will be around for a long time. ये मत सोचिए कि हम जैसे ही इस पैंडेमिक से ओवरकम हो जाएंगे. इससे पहले भी इस तरह के पैंडेमिक्स हम लोगों ने देखा, प्लेग देखा, स्वाइन फ्लू देखा, लेकिन हम लोगों ने लड़ा और हम उसे एक दिन ओवरकम कराए. लेकिन उससे जो सीख हमें मिलेगी वो हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा. बिकॉज दिस COVID-19 is a global tragedy. Historically, it will change our lives, our offices, our country and our education system forever. ये सिर्फ हमारे जहन में ही नहीं बल्कि हमें हर तरह से ये एक सीख दे के जाएगी और हमारा जो सिस्टम है, टोटल सिस्टम बदल जाएगा इस को पैंडेमिक से. अब जैसे कहा जाता है कि पहले के लोगों का जो है आचार विचार, व्यवहार, खान पान, रहन सहन, कहीं हमें वही सब चीजों को फिर से अपनाना होगा. इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि हम ब्लाइंड फेथ करें, ऑर्थोडॉक्स बन जाए, सुपरस्टिशियस बन जाए. मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपने रहन सहन में काफी बदलाव लाने होंगे. जैसे घर में जाने से पहले आप जूते बाहर उतारें, पहले हाथ मुंह धोए, खाना जो है बहुत ही साफ सुथरे तरीके से हमें ग्रहण करना चाहिए. जैसे बुफे सिस्टम अभी हो गया पार्टीज वगैरह में, गैदरिंग्स में, तो उसमें क्या कोई विचार रह जाता है? नहीं. लेकिन ये कोई दकियानी सी बातें नहीं है, ये आज का डिमांड है. ये डिमांड है टुडेज इमर्जिंग सिचुएशन को देखते हुए कि हमें अपने रहन सहन खान पान में भी बहुत विचार करना पड़ेगा, बहुत सारे चेंजेस लाने होंगे ना. जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 इन आवर एजुकेशन सिस्टम. सो इम्पैक्ट्स ऑन स्टूडेंट्स एंड ऑनलाइन लर्निंग. इम्पैक्ट तो हम अभी देख ही रहे हैं. वी आर नॉट इन अ सेमिनार हॉल and students are not sitting in front of us and we are not giving the lectures from the podium and dais, but we are online connected with each other. So I am giving you some online education slides. You can see very well what is the demand today's time. So the shift to online education has been accelerated. इस तरह से इसकी गति बढ़ा दी. Colleges will need to plan for a future where classes can be quickly adapted to online or hybrid learning. इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. Today's demand is interest along with internet. तो interest से नहीं होगा. We also need internet. So this mass transition will be proving ground for online education. Until now, colleges shift online has been steady but slow. हम लोग प्रयासरत हैं. यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स, एडमिनिस्ट्रेशन हर तरफ से कोशिश में लगे हैं और ये जो शिफ्ट है ये हो भी रहा है चेंज, लेकिन
It is steady, but it is slow. थोड़ा सा धीमा हो गया है, धीमा है, उसका टेक्निकल इश्यूज हमें पता है. So the focus is not about experimenting with technology, but an emerging response. इस समय का जो मांग है, ये जो ऑनलाइन हम लोग क्लासेस कर रहे हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, स्टूडेंट्स का जो सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश में फैकल्टीज लगे रहते हैं. सो दीज थिंग्स आर नॉट फॉर एक्सपेरिमेंटिंग. ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा, बट ये इमर्जिंग रिस्पॉन्स है. जैसे तुम लोग इंस्टेंट मैगी, स्टूडेंट्स आप लोग इंस्टेंट मैगी कितनी जल्दी बना लेते हैं, भूख लगी बना लिए. तो दिस इज द instant response from the administration to the students that they should not have any loss in their studies. Institutions are now building out digital systems to support students. And those tools will outlast the coronavirus and inform a digital approach to higher education going forward. You can see the slide here. They are self-explanatory. So in many cases, students just need to reach out to their schools, colleges, administration to be directed to appropriate aid. अगर किसी स्टूडेंट को कोई तरह का दिक्कत है तो हमारे प्रिंसिपल सर, हमारे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से ये भी प्रोजेक्ट रखा गया, प्रपोजल रखा गया है कि स्टूडेंट्स को एंड्रॉयड फोन अवेलेबल करा दिया जाएगा, जिनको ताकि उन्हें कनेक्टिविटी में ऑनलाइन क्लासेस के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो. ऑनलाइन क्लासेस एंड ग्रुप इवेंट्स आर गोइंग ऑन फॉर कंप्लीटिंग द सिलेबस एंड फैकल्टी आर वर्किंग फ्रॉम होम एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू दो स्टूडेंट्स. ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स अपलोड कराए जा रहे हैं, एग्जाम्स लिए जा रहे हैं. अभी ये भी बातें चल रही है यूनिवर्सिटी में कि हाउ वी शुड अरेंज फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन. स्टूडेंट्स आप लोगों को ये समझना होगा कि ये चीजें सभी के लिए नया है और चैलेंजिंग है. तो आप लोगों को पेशेंस रखना होगा, कोऑपरेशन करना होगा, और साथ ही में आप लोगों को इन चीजों के बारे में ज्ञान अर्जन करना होगा, बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ योर फ्यूचर. फॉर दोज न्यू टेक्नोलॉजी एंड लर्निंग दिस मे वेल बी अ वेरी चैलेंजिंग टाइम. इसीलिए कहा गया है patience and prioritization will be key to making the best of the situation. अगर आज के समय को आपको बेस्ट करना है, यूटिलाइज करना है और बाद में रिग्रेट नहीं करना है, तो एक ही चीज है कि आपको धैर्यवान बनना होगा और प्रायोरिटाइज करना है कि किस पे हमको काम करना है. क्योंकि अभी आप बोलोगे वर्किंग फ्रॉम होम, पहले हम लोग सोचते थे इट इज नॉट पॉसिबल. बिना घर से बाहर निकले, बिना गाड़ी चलाए ऑफिस तक पहुंचे, स्कूल तक पहुंचे, कॉलेज तक पहुंच के हम कोई काम नहीं कर सकते हैं. ये सारी चीजें गलत साबित हो रही है. सब कुछ हो रहा है, हम लोग कहीं भी स्टैग्नेंट नहीं हुए हैं, रुके नहीं हैं. जीवन उसी तरह से गतिशील है, लेकिन सिर्फ उसका तरीका बदल गया है. और इससे हमें अभी अपने आप को इस सिचुएशन में और इस टेक्नोलॉजी के साथ एडप्ट करना होगा. आप लोगों को पता होगा कि रिसेंटली फेसबुक एंड गूगल जो ये है कंपनीज हैं, उनके तरफ से अनाउंसमेंट हुआ है कि उनके जो ऑफिसेज हैं इट विल रिमेन क्लोज टिल द ईयर 2021 एंड ऑल द एम्प्लॉयज विल वर्क फ्रॉम देयर होम. ये क्यों किया गया? तो इससे आप लोगों के साथ इसमें हम लोग क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स इसमें से निकाल सकते हैं कि जिनको शहरों में 2 रूम के अपार्टमेंट के लिए किराया देना पड़ता था, घर से दूर रहना पड़ता था, डेली सुबह उठ के उस ट्रैफिक को झेलते हुए ऑफिस तक पहुंचना पड़ता था, आज वही लोग अपार्टमेंट छोड़ के अपने स्मॉल टाउन्स, हाउस नियर बीचेस, फार्म्स, जिनका जहाँ घर है, माइग्रेट कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ रह रहे हैं और घर से काम कर रहे हैं. और ये कहा गया है कि जिसके पास टैलेंट होगा उसे कहीं जाना नहीं होगा. द कंपनीज विल हायर देम वेयरएवर दे आर. तो आपके पास टैलेंट होना चाहिए, आपके पास एक्सपर्टीज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता. और इसी विषय पे जब हम बात कर रहे हैं तो हम आई वांट टू रीड आउट अ पोएम. उसका शीर्षक है वर्किंग फ्रॉम होम. इसे लिखने वाले हैं माइकल विटनी, जो ऑस्टिन टेक्सास में रहने वाले हैं. इनका भी यही सपना था कि रोज सुबह तैयार होके जाना, कहीं इससे अच्छा होता अगर हम घर में रहकर ही काम करते. तो उन्होंने इसी चीज को अपने कविता में भी लिखा है. I remember the days
when I would speculate that working from home would simply be great. No need for the car, the tie, and the suit. No need ever again for that daily commute. I would only dress up when I would be meeting on Zoom. Then I would just have to clean a little part of the room. But now that it's happened, my dreams hasn't come true because working from home is like life at the zoo. A big cafe of monkeys, cage of monkeys couldn't be any worse. The noise and congestion drive me to curse. With everyone here, there is no peace and quiet. It's not at all what I thought when I wanted to try it. Alas, working from home, I get nothing done. And what's even worse, it's not that much fun. Now, I yearn for the days when I went off to work, working from home. It turns out was the dream of a jerk. इस कविता में पहले तो उन्होंने कहा कि ही वॉज वेरी होपफुल और ये उनका ड्रीम था कि घर में रहकर ही काम करना पड़े तो कितना अच्छा हो, ना सुबह वो जल्दबाजी में उठना, ना तैयार होना, ना उस ट्रैफिक में फंसना और ना ही अपने घर को साफ सुथरा रखना. लेकिन जब वो ड्रीम उनके लिए सार्थक हो गया, व्हेन इट रियली हैपनिंग, इट वॉज रियली पनिशेबल फॉर हिम. क्यों? उसे लगता है कि जैसे जानवर केज में रहते हैं कैसे लगते हैं, उसी तरह हम लोग भी अभी तड़प रहे हैं एक केज में, और ये वो होपफुल है कि बहुत जल्दी वो हमारे नॉर्मल जो लाइफ है उसमें रिटर्न करना चाहते हैं. सो दिस इज webinar, this is the pictures, you can see the web, the online studies. Now this is the coronavirus. You can see this is the marks that is essential for all of us, and we all know the measures. हम लोग को measures भी पता है, remedies भी पता है. अब एक छोटी सी कविता पाठ करके मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी. आपका कोई प्रश्न होगा तो जरूर रखिएगा. सावधानी सबसे बड़ी सुरक्षा, कोरोना की सबसे बड़ी दवा. किसी को ना लगने दे बाहर की हवा. परिवार के साथ घर में रहना, हर 2 घंटे में साबुन से हाथ धोना. बस हाथ से मुंह और नाक ना छूना. ना करना इसमें लापरवाही, कहीं ना करना आवाजाही. कोरोना से बचाए मानव की जान, डॉक्टर, पुलिस और विज्ञान 24 घंटे ले रहे संज्ञान. आपका अनुशासन, आपका जीवन, सबको खुश रखना भगवान. ये मेजर्स हैं. होपफुली आप लोग जरूर इन बातों को, इन सावधानियों को बरतिएगा और अपने जीवन को सुरक्षित रखिएगा. द लास्ट आइकन यू कैन सी, स्टे सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस. इसी के साथ जय हिंद, जय भारत और जय झारखंड. थैंक यू मैडम. बहुत बहुत धन्यवाद मैडम. आपने बहुत ही अच्छे ढंग से प्रेजेंटेशन के माध्यम से कोविड-19 और उसके इम्पैक्ट को बताया. आप को पूरे कॉलेज टीम की ओर से और प्राचार्य की ओर से भी और जितने भी प्रतिभागी हैं सभी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और हम आशा करते हैं कि आगे भी जो वेबिनार होगा इस प्रकार का प्रेजेंटेशन हम लोगों को देखने को मिलेगा. और अब लगभग सभी डिपार्टमेंट इसके लिए प्रयास भी करेंगे. जी सर. जितने भी प्रशंसा करूँगा कम है. बहुत ही अच्छा आपका प्रेजेंटेशन रहा और बहुत कम समय में लगभग सारे पहलुओं को छुआ और सभी लोग लाभान्वित हुए, ज्ञानवर्धन किए. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और कुछ जो हमारे जो प्रतिभागी हैं अगर कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं मैडम से तो आमंत्रित है आपके प्रश्न, मैडम उसका जवाब देंगे. तो जो भी जिनको भी कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हैं. जी. जो पूछेंगे वो अपना साउंड को म्यूट को ये कर दीजिए तो पूछ पाएंगे मैडम से प्रश्न.
मुझे लगता है प्रश्न नहीं होगा। अच्छा, तो प्रश्न अगर नहीं है तो एक जो और गेस्ट जो जुड़ने वाले थे जी जी वो जी। कुछ तकनीकी सहायता से नहीं जुड़ पा रहे हैं। अच्छा। हाँ हेलो, एक मिनट। हाँ हेलो, मैसेज। एक मिनट देख ले रहे हैं। तो कुछ भेजे हैं तो हम ट्राई करते हैं, अगर हो पाता है तो ठीक है। हमारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े रहेंगे, स्टे ट्यून्ड। हाँ, हम लोग कोशिश सारे कर लोग रहे जुड़े हैं हुए रहेंगे। प्रेजेंटेशन के लिए, तब तक आप लोग धैर्य बनाए रखें। हाँ, वो फ़ोन पे बात कर लिए, उसको छोड़ देते हैं, ताकि हम जुड़ जाएंगे उससे, वो क्लास में नहीं जुड़ पाएंगे। तो आज जो हम लोग का एक प्लानिंग था एक और गेस्ट का सुनने का, वो हम लोग अब नहीं सुन पाएंगे। तो फिर अब इस प्रकार का वेबिनार जब शुरू हो गया है तो इसे हम लोग आराम से घर पे बैठ करके सारे कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारे चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करने का ज़रूरत है और मेहनत के बाद सफलता ज़रूर मिलती है और इसका प्रमाण भी मिल गया है। अगर प्रश्न अगर नहीं है तो फिर अब हम लोग इसको आज प्रोग्राम को सर के आदेश से, क्या कि सर अध्यक्षता भी कर रहे हैं इस वेबिनार का, तो सर के आदेश के बाद हम लोग एक धन्यवाद ज्ञापन के साथ और हम लोग इसको समाप्त करेंगे। संक्षेप में मैं यही कहूँगा कि यह जो कार्यक्रम, यह जो वेबिनार का शुरुआत किया गया था, वह कुछ लोगों के मन में विचार आने के बाद, प्राचार्य के सहमति के बाद, उनके प्रेरणा के बल पे यह कार्यक्रम हो पाया है और जितने भी लोग जुड़े और जिनको सुने वो सभी लोग लाभान्वित भी हुए और यह एक कॉलेज के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम है और अभी के समय में यह बहुत ही उपयोगी भी। तो मैं चाहूँगा कि अब समाप्त करने के पूर्व हमारे बीच दीपांजय जी हैं, दीपांजय श्रीवास्तव जी, अपना म्यूट को ख़त्म करें और सभी लोगों को एक बार धन्यवाद दें, क्योंकि आप भी बहुत तेज़ हैं इस मामले में और बहुत जूम के और गूगल मीट से आप क्लास कर चुके हैं और सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर लिए हैं। हम लोगों के लिए गर्व की बात है। संचिता मैडम, विनोद सर और सभी लोग बहुत सारे लोगों से जुड़ करके सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं और इसमें भी सभी लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा जो अभी हम लोग वेबिनार कर रहे हैं। आज शाम तक या कल तक सभी लोगों के मेल पे सर्टिफिकेट चला जाएगा। जी दीपांजय सर। आदरणीय प्राचार्य महोदय, सबसे पहले तो मैं आप ही को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपके एक अच्छे इंस्टीट्यूट से ही एक नया वेबिनार जो कि ये एल्वेसम कॉलेज के लिए इतिहास में एक नया मोड़ लाया है और जो आज समय की मांग है, तो इससे एक नई शुरुआत एल्वेसम कॉलेज और उसके परिवार के सदस्यगण किए हैं। मैं करीब डेढ़ महीना से वेबिनार को ज्वाइन कर रहा हूं आसपास और मुझे भी 5-6 सर्टिफिकेट भी नेशनल इंटरनेशनल मिल चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास जो सुविधाएं हैं उस स्थिति में आज हम जो बच्चों को कुछ दे पा रहे हैं वेबिनार के तहत और ये ऑनलाइन पढ़ाकर, इस तरह की जो समय की मांग है उसकी लिए आज वर्कर्स कॉलेज एल्वेसम कॉलेज जो है एक नया मोड़ लाया है और ये मतलब कि बच्चों के शिक्षकों के लिए और हम नेशनल इंटरनेशनल वेबिनार भी आगे कराने के लिए कोशिश करेंगे। तो उससे मतलब कि हमारे कॉलेज का, हमारे यूनिवर्सिटी का नाम भी होगा और जो और जो बच्चों का ज्ञानवर्धन होगा। अगर इस तरह ये विश्वविद्यालय अगर विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हम लोगों को सपोर्ट करता है तो ये एक बड़े विस्तार के रूप में भी ये वेबिनार कराया जा सकता है। इससे हम लोग सभी लाभान्वित होंगे। इसके साथ साथ जो है आज बहुत से बच्चे करीब अभी मतलब कि सामने 20 बच्चे दिख रहे हैं, 20 लोग जुड़े हुए हैं। शुरू में 34 तक गया था, तो इस तरह लोग 34 हाँ 41 तक गया था। 41
हाँ, मेरे में 34 दिखा रहा था, अभी 20 दिखा रहा है। अभी 20 है। हाँ हाँ जी, हाँ। तो इतने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, तो एक नया मतलब कि जरिया आया कि लॉकडाउन में भी हम घर में रहकर भी जो है बच्चों से कैसे जुड़ सकते हैं, उनसे अपने व्यवहार, अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं। और साथ में ये मतलब एक वेबिनार का जो हिंदी में अर्थ होता है, वो उसका सही अर्थ होता है तार रहित संगोष्ठी। मतलब कि आपको जो है एक स्टेज की और एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता नहीं होगी। जब आप तारों से जुड़कर और सामने संगोष्ठी करते हैं, तो उसी को वेबिनार कहते हैं। तो ये एक माध्यम है, इससे हम देश विदेश से भी जुड़ सकते हैं। हमारे स्टूडेंट कहीं से भी रहें, अगर उनको ये सिस्टम पता चल जाएगा, ये जो इसके इंस्ट्रूमेंट प्रयोग हो रहे हैं आज, उसको अगर हम हैंडल करना सीख लेंगे, तो जो भी लेक्चर टॉपिक हो जिससे रिलेटेड, वो मतलब कि वो ज्ञान भी हम प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं जो है सभी शिक्षकों और विशेष कर रहते हैं प्रिंसिपल सर को, मौसमी मैडम को, उनका लेक्चर बहुत ही अच्छा रहा। और सबसे ज़्यादा तो विनय जी ने ये इंसेंटिव स्टार्ट किया, ये नए तरह की एक शुरुआत की जो है महाविद्यालय में, इससे हम लोग सभी लोग लाभान्वित होंगे। अभी जैसे कि सभी बच्चों को हम लोग भी भेजे थे, कभी मुझे याद आ रहा है कि मैं करीब 25-30 बच्चों को जोड़ना चाहा, लेकिन वो बच्चे में 5-7 बच्चे ही सिर्फ दिख रहे हैं। तो बच्चे अभी इसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझ रहे हैं। अभी ये लॉकडाउन पता नहीं कितने दिन तक चलेगा, इसके कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर इस लॉकडाउन का पता चल जाएगा कि ये लंबे समय तक है, तो आगे भी पढ़ाई भी, संगोष्ठी भी, सेमिनार भी, वेबिनार भी सब इसी के माध्यम से होंगे। इसलिए आज ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हो गया है। और जैसा कि सर ने, मौसमी मैडम ने बताया कि किस प्रकार हम स्वस्थ रह सकते हैं, किस प्रकार हम अपने को बचाव कर सकते हैं, ये सब करने के लिए आप लोगों को पुनः धन्यवाद। साथ साथ जो विशेषकर बच्चे जुड़े हुए हैं, अपना वो समय निकाल के उनको भी आज जुड़ना जरूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे तो सुबह 8 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक मोबाइल से और लैपटॉप से पढ़ रहे हैं। लेकिन समय की मांग जो कॉलेज के बच्चे हैं, उनको भी इस तरह जुड़ना होगा और उनको समझना होगा कि वो जो वेबिनार या जो इस तरह के कोर्स चल रहे हैं, वो हमारे लिए कितने आवश्यक हैं। ये संख्या बहुत ही कम है, इसके लिए मतलब कि हम लोग और विनय जी लोग जो कोशिश किए थे, मान लीजिए 40 मैडम बता रही हैं 40, वो नहीं, कम से कम 100 स्टूडेंट होने चाहिए, क्योंकि मैंने भी बहुत से ग्रुप में डाला था, विनय जी ने भी ग्रुप में डाला था। ये संख्या बहुत कम है। आगे जब भी हम सेमिनार करेंगे, जो बच्चे जुड़े हुए हैं, टीचर जुड़े हुए हैं, वो लोग भी अपने स्टूडेंट को और अपने फ्रेंड्स को, बच्चे स्टूडेंट अपने फ्रेंड्स को बताएंगे और उसको जोड़ेंगे, तभी हम पूर्ण रूप से लाभान्वित होंगे। बहुत सारे बच्चे जो हैं, बहुत सारे बच्चे इसलिए नहीं जुड़ पाए जी, गूगल मीट की जगह जूम ऐप से जुड़ रहे थे, लेकिन गूगल मीट को डाउनलोड करना था। जी हाँ। तो सर हम लोग को दोनों शिक्षक इसमें करना ये होगा कि सारे शिक्षक जो है अपने विषय के जो विद्यार्थी हैं, जी उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना होगा, ताकि जो कोई भी मैसेज अगर हम डिसेमिनेट करते हैं तो बच्चों तक आसानी से पहुंच जाएगी, ताकि उनको बहुत फास्ट ये सूचना मिल जाए कि हाँ किस दिन कॉलेज कौन सा वेबिनार किस सब्जेक्ट पर ऑर्गेनाइज करना है और उसको वक्ता कौन सा। तो धीरे धीरे हम लोग चाहेंगे कि इसको सब्जेक्ट ओरिएंटेड कर दें, ताकि शिक्षक अपने सब्जेक्ट से उसको करिकुलम को देख करके उस पर वेबिनार दें, ताकि वो उस ग्रुप को खास करके बच्चे उससे लाभान्वित होंगे। ताकि अगर इस तरह की व्यवस्था स्थिति अगर लंबे समय तक बनी भी रहे, तो उनके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को सेलेक्ट कर लें, ताकि जिससे संभावित प्रश्न परीक्षाओं में आने की संभावना है, और पहले उस पर वेबिनार वो करा लें, तो बहुत ही अच्छा होगा और बच्चे इससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित हैं। जी सर। और बहुत से बच्चों के पास एंड्रॉइड फोन भी और लैपटॉप भी नहीं है, जैसे कि हम लोग उसका व्यवस्था करेंगे जब कॉलेज खुलता है। जी, तो एक व्यवस्था उस तरह से करेंगे कि प्रत्येक बच्चे को नहीं तो कम से कम 5-10 बच्चों के ग्रुप में एक एंड्रॉइड फोन दे दिया जाए, ताकि उससे बच्चे सर विनय सर, हम सर से थोड़ा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रिंसिपल सर से,
कि जी, इस बार अभी जो वेबिनार होगा सब्जेक्ट वाइज ना करके अभी हम लोग अगर एनएसएस ग्रुप अभी में कुछ करेंगे 3 ग्रुप एक साथ कुछ जुड़ हम लोग जाएगा। अभी अभी तो अभी कॉमन चलेगा, अभी कॉमन टॉपिक पे चलेगा। अच्छा, मैडम एनएसएस ग्रुप में हमने डाला था, जो दोनों एनएसएस ग्रुप का मेरे हाँ हाँ, पास है, और यहाँ तक कि हम्म 2008 वाले बैच में सब में मैंने मैसेज हम्म डाला है, ठीक है, और हम्म। उसका लिंक भी डाला है। इसमें अच्छा डिस्कस हम लोग को नहीं और करना है। वेबिनार को हम लोग लंबा ना करके 1 घंटे 1.5 घंटे का रखेंगे, ताकि बहुत जी जी, लड़के बहुत लंबे समय तक नहीं बैठना चाहते हैं, तो चलिए 1 घंटा 1.5 घंटे में ही उनको ज़्यादा 1 से घंटा, ज़्यादा हाँ बात। नहीं, उसमें सर ना नेट का इशू भी है ना, ज्यादा लंबा होने से नेट हाँ, सपोर्ट इसमें नहीं करने से करता। नेट कट हाँ हो हाँ जाती है। हम लोग डिस्कस नहीं करें इस वेबिनार में, हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे इसको। हम हाँ, चलिए लोग कल जैसा तो मीटिंग हम किए लोग थे उस तरह से एक ठीक। मीटिंग बना लें। हाँ, ये पुनः सबको प्राचार्य मतलब कि प्राचार्य बधाई महोदय और जो के। है धन्यवाद हमारी तरफ से, और बच्चों को विशेषकर धन्यवाद, वो इससे जुड़े, और आगे भी हम लोग उम्मीद रखते हैं कि वो इससे जुड़ेंगे। धन्यवाद सर। ये प्राचार्य महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये दीपांजय जी, आपने बहुत ही अच्छा सभी लोगों को थैंक यू। धन्यवाद दिया। अभी 19-20 लोग इसमें जुड़े हुए हैं। मैं जितने भी टीचर लोग जुड़े हुए हैं, विनोद सर हैं, संचिता मैडम हैं, और जो भी छात्र इसमें जुड़े हुए हैं, इतने घंटों तक बहुत धैर्यपूर्वक जुड़े रह करके सभी लोगों को सुना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। नेट भी खर्च होता है, मोबाइल का भी प्रॉब्लम है, नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है, और जुड़ने में भी प्रॉब्लम हुआ, उसके बावजूद भी इतने लोग हैं। तो हम लोग सभी इसको नेगेटिव नहीं पॉजिटिव रूप में लें, ये बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी शुरुआत है। हम लोग फिर और अच्छे ढंग से जुड़ पाएंगे, और अच्छे ढंग से हम लोग बेहतर कर सकते हैं। और पहला ही बार में जो भी शुरुआत हुआ है, मैं मानता हूँ कि यह बहुत अच्छी शुरुआत है। बहुत सक्सेसफुल था, बहुत सक्सेसफुल रहा। प्राचार्य सर का बहुत ही अच्छा व्याख्यान था, मौसमी मैडम का बहुत ही अच्छा व्याख्यान था। 2 व्याख्यान हुए, और दोनों व्याख्यान से कोविड-19 उसके इम्पैक्ट का लगभग सभी पहलुओं को हम लोग जान पाए। इस चीज़ को हम लोग अब अखबार के माध्यम से और सभी लोगों के सामने कल रहेगा। आप सभी को मैं फिर चाहूँगा कि सभी को धन्यवाद है, और सर हम थैंक लोग यू खत्म करते हैं। आप लोग आपको सभी भी, लोग थैंक अब यू लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते ऑर्गेनाइजर, हैं। बीइंग द ऑर्गेनाइजर, थैंक यू सो मच, और हमारे प्रिंसिपल सर को भी थैंक यू विद सो मच। विद आप कन्वेनर, विद कन्वेनर। चलिए सबको चलिए सर, थैंक यू। चलिए सभी लोगों ने जुड़ा और विनय अपना जी का समय भी दिया। प्रयास था, और उन्होंने बहुत मेहनत किया, इसमें इंटरेस्ट शो किया, तो सक्सेसफुल ही माना जाएगा। इसको हम लोग और बड़ा से बड़ा बृहद करते जाएंगे, ताकि ज़्यादा सक्सेसफुल से ज़्यादा वेबिनार, लोग जी इसमें सर। जुड़ें। और नेट की सुविधा को देखते हुए सार्वगर्भित व्याख्यान रखे जाएंगे, और उसका समय ड्यूरेशन हम लोग कम रखेंगे। ठीक है। ठीक ठीक है सर, धन्यवाद धन्यवाद। सभी लोगों को। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। अब हम लोग इसको समाप्त करते हैं। आपने समय दिया सभी को एक बार पुनः धन्यवाद। ओके भाई, ओके। नहीं,